تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء السلام، پیج نمبر 2، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 4۔ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آیت الکرسی جیسے ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اسلام بھائی وغیرہ، اور آپ نے اس کے ایک فضائل بیان کیے تھے کہ جو استقامت کے ساتھ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کا شمار جو ہے صدیقین میں کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم یہ جو ہے آیت الکرسی استقامت کے ساتھ کس طرح پڑھیں؟ کہیں نہ کہیں سستی آئی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھیں اور فجر کی نماز کے بعد جیسے آیت الکرسی پڑھنا بھول جائیں، اب صبح یاد آیا کہ اب آیت الکرسی پڑھنی ہے تو پھر کس طرح پڑھیں کہ پڑھنے کے بعد بھی ہمارا صدیقین میں شمار ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب عطا فرما۔ اچھا، لگتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا تھا کہ کسی کا قول ہے کہ چونکہ آیت الکرسی کی فضیلت بڑی ہے کہ نماز کے بعد پڑھنے والے کے لیے موت ہی رکاوٹ ہے جنت میں جانے سے، مرتے ہی جنت میں داخل ہو، یہ فضیلت ہے۔ اور کسی کا قول ہے، یہ تو حدیث پاک ہے، اب کسی کا قول ہے کہ آیت الکرسی پر استقامت ہر نماز کے بعد پڑھے ہی پڑھے، ناغے نہ ہوں، تو یہ صدیقین کا کام ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا، اور اب غلط بھی ہوگی، صدیق بن جائے گا کوئی یہ پڑھے گا تو ایسا میں نے نہیں کہا، نہ میری معلومات میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ اس وسلم۔ میں جیسے انہوں نے یہ بھی شامل کیا کہ فجر میں اگر نہیں پڑھ سکے تھے اور بھول گئے تو اٹھنے کے بعد اگر فجر صبح اٹھے 9 بجے پھر آنکھ کھلی یاد آئے تو اس کی اس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے بھی ولی کی اعلیٰ قسم، سب سے اعلیٰ قسم صدیق ہے، اور ولایت کسب سے نہیں ملتی، پڑھنے پڑھانے سے یا عبادت کرنے ہی سے نہیں ملتی۔ اصل ولایت جو ہے نا وہ ہے وہابی مانے عطائی، اللہ جس کو عطا کر دے۔ بے شک عبادت اس کا ذریعہ ضرور بنتی ہے کہ وہ نوافل کے ذریعے، فرائض تو پابندی کرتا ہے، پھر نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اس طرح کی حدیث پاک ہے۔ لیکن مسئلہ وہ یہ کہ ولایت جو ہے وہ اللہ پاک کے خاص یعنی کہ کرم سے، اس کی عطا سے ہی ملتی ہے، اپنی کوشش کو اس میں دخل نہیں ہوتا۔ اور ولی کے لیے عالم ہونا بھی شرط ہے۔ بہرحال یہ کہ اس طرح کے اعمال نہیں ہوتے کہ بس یہ کرے گا تو ولی بن جائے گا، ولی بس یہ ریکوائرمنٹ پوری کر دے تو ولایت مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ نبوت بھی اللہ نے عطا کی جس کو کی، اب تو کسی کو نبوت نہیں ملے گی، نہیں دی جائے گی، یہ ایک فائنل ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ولایت مل سکتی ہے لیکن وہ اللہ جس کو عطا کرے۔ فجر کے بعد جو اوراد پڑھے جاتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جماعت کے بعد سلام ہوتا ہے، سلام کے بعد مدنی ہلکے لگتے ہیں، تو
تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے, تو اب وہ اورات کس ٹائم پہ پڑھے جائیں, اس بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں. جو فجر کے بعد فکس ہیں کہ نماز کے بعد ہی پڑھنے, ظاہر وہ تو نماز کے بعد ہی پڑھنے, اور بعد میں اگر ہو گیا تو پڑھ لے, یہ تو ہے نقصان نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کی عادت بنائے کہ میں بعد میں ہی پڑھوں گا, جبکہ اگر اس کا وقت کسی ورد کا فکس ہے تو وہ اسی میں اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. اور جو صبح کے اوراد ہیں نا, وہ تو آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک, یہ صبح کی تعریف ہے, اس دوران جب بھی پڑھے گا یہ ہو جائے گا. اور نماز کے بعد فجر کے تو آیت الکرسی ہے, جسے اگر کوئی پڑھتا ہوگا تو یہ پڑھ لے گا, جس کو 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہوگا, یا وہ تسبیح ہے فاطمہ وہ 3-4 منٹ میں پڑھ لے گا, تو اتنا وقت تو آدمی نکال سکتا ہے فجر کے بعد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت محمد سلیمان مدنی جامعہ رضویہ قاسم العلوم میرپور آزاد کشمیر سے حاضر ہوں. ماشاءاللہ. آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ خواہشات نفسانیہ سے ایک اچھے انداز میں مقابلہ جو ہے وہ کس انداز میں ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ, اس کے لیے تو خوب ریاضت کرنی پڑے گی, محنت, ریاضت. اور جیسے زمانے سے اس کو پال پوس کے بڑا کیا نفس کو, تو اب ظاہر ہے کہ ایک جھٹکے میں اس سے جان کیسے چھوٹے. اس کے لیے اول تو مطالعہ کرے, اور نفس کے ساتھ ساتھ شیطان کے وار بھی ہوتے ہیں, تو ان سے آدمی بچے. تو اس کے لیے بہترین ایک طریقہ احیاء العلوم کا مطالعہ. اب اس میں بھی یعنی کہ یہ کہ سمجھ آنی چاہیے, کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آئیں گی, تو اب اس کے لیے بھی کوئی ایسا استاد ہو جو رہنمائی کرے, یا پھر اس کی شرح دیکھے. شرح بھی ہے نا اس کی, وہ علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ کی. حضور کافی عرصے سے میری یہ خواہش تھی کہ کوئی ایسا وظیفہ آپ بتا دیجئے کہ جو ہر وقت میں پڑھتا رہا کروں. ایک دفعہ خواب میں بھی زیارت ہوئی تھی آپ کی, تو آپ نے استغفار کثرت سے پڑھنے کا کہا تھا, تو بھی اگر دوبارہ آپ سامنے بھی آپ تشریف فرمائے تو آپ کو کرم فرما دیں کوئی ایسا وظیفہ جو کہ اکثر میں اس کو پڑھتا رہا کروں. خواب والے وہ کنٹینیو کر لیتے ہیں. استغفار تو بہترین وظیفہ ہے نا. وہ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بارش کی قلت یعنی بارش کی تنگی کی شکایت کی. آپ نے اس سے استغفار کرنے کا حکم دیا. دوسرا شخص آیا اور اس نے تنگ دستی کی شکایت کی, مالی کمزوری کی, تو اسے بھی یہی حکم فرمایا کہ استغفار کرو. پھر تیسرا شخص آیا اور اس نے نسل کم ہونے کی شکایت کی اولاد کے لیے, تو اس سے بھی یہی فرمایا. پھر چوتھا شخص آیا اور اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی, تو اس سے بھی یہی فرمایا. حضرت ربیع بن صبیح رحمت اللہ علیہ جو کہ وہاں حاضر تھے, انہوں نے عرض کی آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے طرح طرح کی حاجتیں پیش کی. آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو. تو آپ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی, استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. استغفار جیسے استغفر اللہ کہا, یہ بھی استغفار ہے, اور مختلف صیغے ہیں اس کے. واقعی یہ اگر ہم پڑھتے رہیں تو اس کی بڑی برکتیں ہیں. کچھ نہ کچھ استغفار بندے کو کر لینا چاہیے. جیسے عوام میں ملنا جلنا, وہ اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں.
जैसा हर आदमी मतलब ज़ाहिर है कि वो साफ सुथरा नहीं होता, कहीं बदनीयती की आलाइश होती है, कहीं दीगर गुनाहों की आलाइश होती है, तो मैंने पता नहीं चलता ना हमको बदगुमानियाँ करनी है। बहरहाल लेकर अवाम में जब मिलेगा तो कुछ ना कुछ होता रहता है, इसलिए वो इस्तिग़फ़ार करता रहे ताकि इसके असरात जो है ना ज़ाइल हो, ये करना चाहिए। जैसे कि बाजार की चीज़ खरीद कर खाने से उलमा ने मना फरमाया, राहे इल्म में अल्लामा ज़रनुजी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको मना किया, नाजायज़ नहीं है। लेकिन अब इसकी हिकमत जो है ना वो इस तरह की है कि जैसे अब बाजार में कोई चीज़ है, ठेले पर बिक रही है, दुकान पे सजा के रखी हुई है, तो इसको हर फर्द की नज़र पड़ती है, और बाज़ों की नज़र जो होती है बड़ी ना तरह तरह की नज़रें भी होती हैं, अच्छी नज़र भी होती है, बुरी नज़र भी होती है। फिर गरीब आदमी की नज़र वो ज़्यादा लग सकती है, यार पैसे होते तो जो पीले पीले चमकदार आम है ना मैं भी लाता, लेकिन मसला ये कि तंदूर की रोटी खरीदने के पैसे नहीं है, इतनी महंगाई है, मैं ये 200 रुपये किलो के आम कैसे खरीदूंगा, और बच्चे मेरे साथ हैं, तनख्वाह मेरी 20,000 है, कहाँ से लाऊंगा, ये मिठाई चमक रही है, ये कैसे लूँगा, ये सब ये फुला फल, तो फुला मतलब ये छोले कचौरी, तो ये सारी चीज़ें इन पर लोगों की नज़रें पड़ती रहती हैं। तो इसलिए मतलब इन चीज़ों को खाने से वो सेहत पर असर पड़ सकता है, सेहत पर, फिर रूह पर असर पड़ सकता है, इसका बातिनी तौर पर भी इसके असरात पड़ सकते हैं, नुकसानात हो सकते हैं। जैसे खुशू व खुजू बाजू का डिस्टर्ब होता है, सोज़ो रिक्कत इसमें फ़र्क आ जाएगा, और कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो इस तरह बचना बेशक मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है। इस तरह होटल में खाएंगे, अब जो गरीब आदमी है बेचारा वो दाल रोटी खाएगा, अब दाल रोटी भी मेरा ख्याल 150-200 रुपये का इसमें भी बन जाता हुआ, और अगला जो है वो चरखा जो सरिये में घूमता है उसने ये ला के रखा है ना, और दाल ली है उसने तो वो खाली टेस्ट के लिए दाल फ्राई ली है उसने, है ना। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो हम अंडा आमलेट अलग खुशबुएं लुटा रहा है, अब कोई ऐसा खर्चा करने वाला आदमी है वो ये लेकर बैठा है, और बराबर में बेचारा वो दाल रोटी खा रहा है, उसकी नज़र तो जाएगी ना इस पर कि यार मज़े लगे पड़े इसके, तो नज़र, और फिर हदीस पाक में भी है नज़र का लगना हक है, इसीलिए बेहतर भी है कि आदमी घर में जाए दोस्तों में सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बारकल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह पढ़ता रहे ना, तो ये कि इससे भी इंशाअल्लाह नज़र की किसी पर हमारी नज़र न लगे, ये भी है ना। माशाअल्लाह कहने से, तबारकल्लाह कहने से, बारकल्लाह कहने से भी अपनी नज़र का भी दूसरे को ज़रर ना पहुँचे, इसका हिसाब होता है, इसका फ़ायदा होता है इससे। तो इसी तरह के पढ़ते रहेंगे तो इससे आपस में जो कुर्बो जवार में जो भी इस तरह की आलाइशें हैं ये इंशाअल्लाह दूर होती चली जाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ तो गाना बजता है, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो घर में पहुँच जाता है, गाना बज रहा है, फिर वो गुनाह भरा चैनल चलता है घर में, रक्कासा आकर नाचती है, हम तो सिर्फ खबरें सुनते हैं, तो खबरें कौन देती है, तो बेपर्दा औरत ही तो होती है, इसमें भी तो म्यूजिक होता है, क्या नहीं होता, तो ये सब होता है, तो अब वो क्या किसी की नज़र आपको बोलेगी कि इसने आपके आम को देख लिया, आपकी मिठाई को देख लिया, तो बेड़ा गर्क कर रखा खुद अपने घर में। तो कौन सा घर ऐसा है जिसमें मुसीबतें और परेशानियां नहीं है, सुकून वाला कोई घर आपने देखा हो तो मुझे बताना कि भाई 100% इस घर में सुकून और सब खुशहाल, बहुत मुश्किल है। तो लड़ाई झगड़े मार कुटाई रूठ मन बड़ा उड़ी लगी पड़ी है। तो हमने मतलब यानी कि हम इसके लिए विर्द तो मांगे हैं कि विर्द पढ़कर ही सारे मसाइल तय हो जाए। मैं आपको सबसे बड़ा वजीफा बताता हूं, सबसे बड़ा वजीफा है बड़ा मुश्किल, और वो है 5 नमाजें पहली सफ में तकबीर उला से बाजमात पढ़ना, है ना। हाँ ठंडे ठंडे हो गए, ये वजीफा कौन करेगा, वो तो वैसा विर्द बता दिया जाए कि वो अगर बोलेंगे ना कि ये 12,000 बार पढ़ो, ये तो नहीं हो सकता। तो मुख्तसर सा जो आपने कमाया हो वो दे दो,
अब वो जो कमाएगा, जिसने सरमाया जमा किया है, इतना बैलेंस किया, वो आपको यूं उठाकर कैसे सारा दे दे? समझा? उसको देने भी तो आना चाहिए ना। तो हमारे यहाँ ये होता है, सबसे बड़ा विरद नहीं है, आप मना कर दो कि नमाज सबसे बड़ा वजीफा नहीं है। कुरान फरमा रहा है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, है ना, नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है, मना करती है। अब इतना बड़ा वजीफा बुराइयों से, गुनाहों से जान छुड़ाने का, ये कौन अदा करता है यार? हम तो पढ़ते हैं, जमात से कितनी पढ़ते हैं? अच्छा चलो बाद जमात पढ़ते हैं, पहली सफ में पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने किसको आती है? अव्वल तो 2-3% मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, फिर पढ़ने वालों में शायद हजारों में कोई इक्का दुक्का हो जिसको सही नमाज पढ़ना आती हो, क़िराअत जिसकी दुरुस्त हो, तहारत जिसकी सही हो। कहाँ? मतलब जो अहले इल्म में समझ सकते हैं मैं जो क्या क्या कहना चाहता हूँ। आती नहीं नमाज पढ़ना, ना ज़ाहिरी आदाब का लिहाज, ना बातिनी आदाब का पास, नमाज पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं। ये मसला हल नहीं होता, वो मसला हल नहीं होता। तो मसाइल के हल के लिए नमाज नहीं पढ़ी जाती, नमाज अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ी जाती है। ये तो ज़िमनी फ़वाइद इसके अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार है। तो इस वजीफे को पकड़ लेना। फिर यह क्या है, बेहतरीन वजीफा, सबसे बेहतरीन वजीफा नमाज के अलावा, मतलब नमाज तो आई, दुरूद शरीफ। और किसी को बोल दो ना कि आप कोई वजीफा बताओ, परेशानी हल नहीं होती, मुसीबत नहीं जाती, आप ऐसा करें हर नमाज के बाद 12-12 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। वो सीरियस नहीं लेगा, वो तो बचपन से पढ़ते आ रहे। हालांकि दुरूद शरीफ बेहतरीन वजीफा है, बेहतरीन विरद है, हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है, सल्ले अला मुहम्मद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम अदील अहमद है। मैं जामिया जुवेरिया दाता दरबार लाहौर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक आलिम दीन को कैसा होना चाहिए? अल्लाह अल्लाह, बाअमल होना चाहिए। जो भी आलिम बाअमल होगा उससे मसाइल नहीं खड़े होंगे। मेरा ख्याल जामे जवाब है। जी, मेरे लिए ईमान की इस्तिकामत की दुआ फरमा दें और औलाद की भी दुआ फरमा दें। अल्लाह पाक नेक औलाद बाआफियत नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद वहाब अत्तारी है। मैं जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर नौखर मंडी ज़िला गुजरांवाला से दर्जा सानिया क्लास का तालिब इल्म हो। मुर्शिदी अत्तार लजपाल की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि दरस निज़ामी की कुतब के साथ साथ दीगर किताबों का मुताला कितना ज़रूरी है, नीज़ इसके लिए इस्तिकामत कैसे हासिल की जा सकती है? मेरे लिए, मेरे वालिदैन और असातिज़ा किराम की बख्शिश के लिए दुआओं का मुल्तजी हूँ। आमीन। अल्लाह पाक यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व लहुम बिग़ैरि हिसाब। दीनी मुताला किए बगैर तो गुजारा नहीं है। दरस निज़ामी का पूरा कोर्स अगर कर भी लें तब भी निजी मुताला करना होगा। और तो दरस निज़ामी का कोर्स भी क्या गुजारे का करते हैं। साईं भाई इतना पहले जिस तरह का ज़ौक़ होता था उतना आमतौर पर पाया नहीं जा रहा। अब रही सी कसर वो सोशल मीडिया ने और ये व्हाट्सएप ने ये पूरी कर दी है कि इसको टाइम दे या पढ़ने को टाइम दे, क्या करें? मुताला करते रहे तो इल्म बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जिस तरह के अभी मुल्की हालात भी हैं, हम जामियातुल मदीना में मुक़ीम होते हैं, बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, असराफ से हम किस तरह बच सकते हैं? इस हवाले से अगर कुछ मदनी फूल आप इरशाद फरमा दें। अल्लाह अल्लाह। इसराफ वक्त यानी कि बहुत होता है, खुसूसन दीनी इदारों में भी होता है, तो ठीक ठाक होता है। क्योंकि बिल जेब से तो पेमेंट करना नहीं होता है, ना इतना जहन होता है। एक एक फर्द अगर जैसे पंखे लाइन सर लगे हुए ना, तो एक एक फर्द एक ही पंखा चलाएगा और लेट जाएगा। इनको ये पता नहीं कि ये कितना बिल ले रहा है। तो यूं लाखों रुपए बिल बन रहा है।
اس لیے وہ بہرحال ضرورت ہے تو ٹھیک. اب بلب بھی بہت سارے روشن ہوتے ہیں. اب جیسے یہاں کافی روشن ہے تو یہاں ضرورت ہے. کیمرے چل رہے ہیں تو یہ لائٹ ہوگی تو یہ رزلٹ اچھا آئے گا. تو یہاں حاجت ہے. یعنی جب حاجت ہو تو 100 بلب چلیں اور حاجت نہ ہو, ضرورت نہ ہو تو ایک بھی کیوں. اچھا کمرہ بند نہ کر دیں, کھڑکی کھول دیتے تو روشنی, یعنی دن کے وقت روشنی آ جاتی ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں کوئی وجہ اے سی چل رہا ہے اس لیے دروازے بند کر دیے تو یہ صحیح ہے کہ اگر کھلے رکھیں گے تو کولنگ باہر نکل جائے گی تو اے سی کا وہ نفع نہیں حاصل ہوگا. تو ضرورت ہو تو ٹھیک, ورنہ دروازہ بھی کھلا رکھ کر اس سے روشنی سورج کی لے لی جائے. اور صحت کے لیے بھی مفید ہے. وہ تازہ ہوا بھی چاہیے, یہ بھی مفید ہے. اے سی کے تو اپنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. تازہ ہوا بھی ملنا اس سے دشوار ہوتا ہے. تو کچھ بھی کریں آپ, مدرسہ ہو, گھر ہو, کہیں بھی ہو, نوکری ہو آپ کی, کسی کی جگہ ہے, تب بھی مطلب نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایسا اسراف جس میں مال کا نقصان, مالی نقصان, تو یہ حرام ہے. تو بجلی جو صرف ہوتی ہے بلا وجہ, یہ مالی نقصان ہے, کیونکہ پیمنٹ تو کرنی پڑے گی اس کی. اور پھر یہ کہ وقف کا ادارہ پیمنٹ کرے گا, قوم کا چندہ, یہ بات تو کہاں کی کہاں نکل جائے گی. اپنے گھر کی بھی کریں گے تو اس طرح اسراف تو ہوگا. اس طرح کھانے پینے میں بھی اس وقت سب سمجھ میں آئے گا, اس وقت نہیں سمجھ میں آتا جب اس غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے. کھانے پینے میں بھی اتنا گرانا ہوتا ہے, ہڈی پہ بوٹی لگی ہوئی ہے چھوڑ دی جائے گی, نہیں نکالیں گے, برابر ہڈی صاف نہیں کریں گے, اور چاول گرا رہے ہیں, تھال میں کچھ جا رہے ہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چاول بھی ایک ایک دانہ اٹھا کر کھا لیا جائے, برتن بھی صاف کر لیا جائے, ہڈی وغیرہ جو بھی ہے اس میں جو بھی غذا لگی ہوئی جو کھائی جا سکتی ہے اس کو کھا لیا جائے. چاہے بوٹی ہے, چاہے مسالہ ہے. ٹماٹر پھینک دیتے ہیں, ٹماٹر تو بہت اچھی چیز ہے, پکے ہوئے ٹماٹر پھینک دیتے ہیں, کیوں کھانے کی چیز ہے, کوئی خاص مشقت بھی نہیں ہے. کھائیں گے تو آپ کو شاید مزہ ہی آئے گا, لیکن ذہن بنا ہوا ہے کہ بس یہ پھینکنے کا ہوتا ہے, پھینکنے کا نہیں ہوتا. اسی طرح پانی ہے, اس میں بھی نل کھول کر دھڑا دھڑ پانی جا رہا ہوتا ہے. یہ بھی ظاہر اسراف ہے, اور وہ اسراف ہے کہ جو مالی نقصان ہے. ان سب سے بچنا ہوگا. آپ اپنے جامعات المدینہ میں بھی اس کو نافذ کریں اور اپنے گھروں میں بھی اس کی احتیاط کریں. کسی کے گھر جائیں تو اس کی بھی احتیاط کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہم مسجد کے اندر درس وغیرہ دیتے ہیں, تو اب اگر درس کے اندر تاخیر کی جائے تو اسلام بھائی وہ چلے جاتے ہیں, رکتے نہیں ہیں. اور اگر جلدی دیا جائے تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ نماز کے وقت قرآن پاک بھی اتنی تیز آواز سے نہ پڑھا جائے کہ جو ہے وہ نماز میں خلل واقع ہو. تو آپ درس دیتے ہیں یا سورہ ملک پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کے اندر خلل واقع ہوتا ہے. تو اب اس صورت کے اندر کیا کیا جائے, کس طریقے سے درس وغیرہ کی ترغیب کی جائے, تو رہنمائی فرما دیجیے. اگر مائک پر کریں گے تو تکلیف ہوگی. اگر مائک پر نہیں بھی کرتے اور امام صاحب جہاں ہیں اس کے پاس بیٹھ کر کریں گے تب بھی تکلیف ہوگی. ہم نے یہ تو, آپ تو چھوٹے ہوں گے جب, تب سے یہ لکھ کر دیا ہوا ہے جو شاید کہ مسجد میں سائیڈ میں ایسی جگہ پر بیٹھنا جہاں کسی نمازی یا تالی یعنی تلاوت کرنے والے وغیرہ کو تشویش نہ ہو, پریشانی نہ ہو, تو اسی جگہ درس دیں. کوئی ضروری نہیں, لوگ کو جانے دیں. آپ کو گیدرنگ کا شوق بہت ہے, ہم لوگوں کو گیدرنگ کا بہت شوق ہے. آپ مطلب ایک آدمی بیٹھیے اپنے ساتھ, اللہ کی رضا کے لیے اسی کو درس دیں. غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہی واقعہ ہے کہ کسی نے بتایا کہ آؤ تم کو سفیان ثوری کے شدت اخلاص کا مطلب نظارہ کرواؤں. چنانچہ وہ ان کے پاس حاضر ہوئے, حضور ہم کو حدیث سننی ہے.
बराबर उनको हदीस सुनाई। और शायद या तो इनका ये वाक्य कि दरस हदीस दे चुके थे तो किसी ने आकर किया कि मैं तो रह गया, उसको वही पूरा एक को सुनाया। इस तरह का है कोई वाक्य। तो ये हमारे बुजुर्गों का तो गैदरिंग की कोई मतलब है नहीं कि फजीलत नहीं है, असल फजीलत इखलास की है। चाहे एक हो दो वो उसमें बयान कर दें, दर्स दे दें, नो प्रॉब्लम। जज़ाकल्लाहु खैरन। वैयाकुम। तो मुझे मुर्शिद आपसे एक इल्तिजा थी कि हमें इल्म के मुताबिक कोई सी हदीस सुनाए जिससे हमारा दिल खुश हो जाए, क्यों यहाँ सारे तालिब इल्म हैं। एक ऐसी कोई हदीस मुबारक सुना दें आप जिससे हमारा दिल खुश हो जाए। फरमाया आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स इल्म की तलब में किसी रास्ते को चले, अल्लाह पाक उसको जन्नत के रास्ते पर ले जाता है। और तालिब इल्म की खुशनुदी के लिए फरिश्ते अपने बाजू बिछा देते हैं। और आलिम के लिए आसमान वाले और जमीन के बसने वाले और पानी के अंदर मछलियां, ये सब इस्तिगफार करते हैं। और आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे 14वीं रात के चांद को तमाम सितारों पर। और बेशक उलमा वारिसे अंबिया हैं। अंबिया ने अशरफी और रुपये का वारिस नहीं किया, उन्होंने इल्म का वारिस किया। बस जिसने इल्म को लिया उसने पूरा हिस्सा लिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हमारा सफ़र में यहाँ पंचोड़ी लाइक रहना है वो यहाँ, तो अरे भाई के कसर नमाज पढ़ने का मुझे पूरा घर जो माहौल मिली रही है, तो कसर नमाज पढ़ा कि पूरा पूरा पढ़ा। अगर इमाम जे वास्ते आए पढ़ना ना, हाँ। जो मुकीम आए हिडा जो, हाँ उनके वास्ते तो पूरी पढ़ना। अच्छा। अगर जमात से नहीं पढ़िया जाने तो 4 रकात वाला फर्ज जो है ना, ये जगह ते वो पढ़ना। जोहर असर इशा में वो रकात कसर फर्ज में, बाकी सुन्नत वितर वगैरह वो पूरा पढ़ना है। मगरिब या पूरा पढ़ना है, इनमें कसर नहीं। ये कोई सवाल वो खोटो बोलना तो हराम है ने, अगर मुझे खोटो बोलने से कोई जो कि भलो थे तो या कि सारो थे तो खोटो बोली सका तो ये करो। बात सूरत में तो खोटो बोलना वाजिब है। अच्छा। हाँ, भलो हर तरह जो हो तो भलो अड़ो है कि जाने उर्दू में बोला था कि बदे समझना है, उर्दू समझ बोलो है बोलो। देखिए, किसी को कोई जालिम कत्ल करना चाहता है और आपको पता है कि वो कहाँ छुपा हुआ है, और कोई वो जालिम आकर बोलता है कि बताओ वो कहाँ है, तो अब आप बताएंगे तो जान उसकी चली जाएगी। अब उसका भला करने के लिए आपको झूठ बोलना कंपलसरी है, वाजिब है कि आप बोल दें मुझे पता नहीं है, ताकि उसकी जान बच जाए। तो जैसा भला वैसा हुक्म होगा, हर भले में नहीं इजाजत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इन दिनों पंजाब से सिंध की तरफ जानवरों को लेकर आते हैं ट्रक में, और ये 2-3 दिन का ये फासला होता है, और इसमें जानवरों को भूखा रखा जाता है। ये कैसा भूखा रखा जाता है? मुझे पता नहीं है इसका। नहीं, अगर वाकई भूखा रखा जाता है बिला वजह, इनको तकलीफ दी जाती है तो गुनाह का काम है। लेकिन मुझे ये पता नहीं है भूखा रखा जाता है या नहीं। समझ में मेरे को भी आता है कि ये किस तरह खिलाएंगे। अंदर तो गोबर और ये भरे हुए भी, यानी कि बिल्कुल ठास के भरे हुए होते हैं। ये खाली कुर्बानी का नहीं है, ये सारे साल की कहानी। जहां से भी बकरे और भेड़ लाते हैं, बड़े जानवर लाते हैं, तो ये करते होंगे। बल्कि मंडियों वाले भी, हमने एक बार ऊंट लिया, कुछ साल पहले की बात है, मैं खरीद लिया हूं, तो ऊंट वाले ने बोला इसको थोड़ा आप लोग चारा खिला देना, भूखा है। क्योंकि वो खा जाता होगा 400-500 रुपये 1000 रुपये के रोज के चारा, तो ये तो कमाने वाले हैं, ये कहाँ इतना चारा, इसका पेट कितना बड़ा होता है, तो पूरी बोरियां अंदर आ जाएंगी। तो ये हालत है, ये हमारा तजुर्बा है। तो इसलिए वो है तो जुल्म है, और बेज़बान जानवर पर जुल्म करना, ये मुसलमान पर जुल्म करने से भी ज्यादा सख्त हुक्म रखता है कि मुसलमान तो फरियाद करेगा, अदालत में जाएगा,
केस करेगा या कुछ भी करेगा, लेकिन ये बेजुबान जानवर बेचारा किसको फरियाद करेगा। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मजलूम जानवर की बद्दुआ भी कबूल है। अब अल्लाह बेहतर जाने, आमतौर पे ये जानवर बेचने वाले जो होते हैं ना, तो मुआशरे का ये सबसे अनोखा ये तबका लगता है। तो क्या बात किसी को जानवरों की बददुआ भी लगती हो, लेकिन ये कि हम किसी फर्द को देखकर ये फाइनल नहीं करेंगे कि ये जानवरों को तंग करता है इसलिए ऐसा हो गया है। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। सिर्फ पैसा ही तो सब कुछ नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बाबा जान, आपकी बारगाह में ये सवाल है, जब हम मदनी माहौल की तरफ आना चाहते हैं तो बाज़ औक़ात घर वालों का जहन नहीं होता कि हमारा बेटा या हमारा भाई दीनी माहौल में जाए। अब वो थोड़ी सी मुखालफत करते हैं, तो अब उनको, बड़े भी होते हैं, उनको किस अंदाज से हम गाइड करें, इसके बारे में रहनुमाई फरमा दें। और मदनी माहौल में हम नेकियां करने की या अपनी इस्लाह की कोशिश में, या जो चीज़ें हम पे फ़राइज़ और वाजिबात हैं, तो उस पर तौफीक नहीं मिल पाती, दिल उसको यही है कि तौफीक नहीं मिल पाती। जैसे एक वाक़या है कि एक शख्स अत्तार के बाज़ार की तरफ गया, तो वो जैसे ही करीब गया तो गिर के बेहोश हो गया। अब वो सब उसको आए उठाने के लिए, हाथ पाँव मलते रहे। तो उसमें एक समझदार आदमी था, उसने जब देखा, उसको पहचाना, तो उसने उसको जुराब सुंघाई तो वो होश में आ गया। तो किसी ने पूछा आपने ऐसे कैसे किया, तो उसने बताया कि ये जो है ना एक बदबू वाले इलाके में रहता था, तो ये बदबू का ही आदी था, तो इसने अब खुशबू सूंघी तो ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। तो कुछ मामलात ऐसे होते हैं हमारे साथ, तो उस पर यही है कि आपने इतना करम किया है, और भी करें, हम अल्लाह के लिए आपके पास आए हैं। अगर घर में अखलाक अच्छे होंगे ना, पहले अगर थे भी कुछ खराबी, तो दीनी माहौल में आने के बाद अखलाक अच्छे हो गए, आते जाते सलाम करता है, दस्तबोसी करता है माँ बाप की, और 19 मदनी फूल जो हैं घर में माहौल बनाने के, दीनी माहौल बनाने के, उस पर अगर अमल करता है तो इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता ऐसा माहौल बन जाएगा कि उसको इजाज़त मिल जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरे असली से सवाल ये है कि नेक अमाल के हवाले से हमारी कुछ सुस्तियाँ होती हैं, उस पर अमल करने के हवाले से, उसका रोज़ाना जो है नेक अमाल का मुहासबा करने के हवाले से, इस पर मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है ना वो इस्तिकामत मिलती नहीं है। चंद एक बार शुरू करते हैं, उसके बाद फिर जो है वो सुस्ती आ जाती है। कुछ ऐसा नुस्खा अता फरमाए कि इस पर हमारी पाबंदी भी हो जाए और इसका कुछ हमारा प्रॉपर एक जहन बन जाए कि ये करना है। इसमें ऐसा है कि नेक अमाल का जहाँ तक ताल्लुक है, अब चूंकि ये नफ्स भी रुकावट बनेगा, शैतान भी मसले करेगा, तो जब इसमें पहले तो आपको सीरियस लेना पड़ेगा इसको कि ये मुझे करना है या नहीं। अब अगर करना है तो फिर करना है, तो ये फाइनल करें कि मुझे ये काम करना है, तो अल्लाह करेगा आसान हो जाएगा। ये तो कोई मुतालबा है नहीं कि वो रातों रात 72 नेक अमाल पर अमल हो जाए। आपके 72 पे ना हो, मिसाल के तौर पे 2 ही पर है। वो अपने अमल का जायजा, मुहसबा नहीं बोलते हम क्योंकि अवाम नहीं समझेंगे, अपने अमल का जायजा लेकर, नेक अमल का जायजा लेकर वो 2 ही लिख दें आप, तो 2 से 3, 3 से 4 अल्लाह करेगा तो बढ़ेंगे, सीरियस होंगे ना, तो इस तरह ये आप लिखने से थोड़ा इस्तिकामत मिलेगी, आपको तादाद मिलेगी। वरना ये जो 72 है ना, इनमें जो नहीं भी भरते ना, या नेक अमाल का जिन्होंने नाम भी नहीं सुना, लेकिन बाज इनके नेक अमाल पर पहले से अमल होता है, रिसाले के जरिए हुआ है, होता है, तो वो जब गौर करेगा, अच्छा अच्छा ये तो मैं कर रहा हूँ यार, ये भी मैं कर रहा हूँ, तो इस तरह वो इसको यूँ हौसला बढ़ेगा, क्या मेरे यूँ 12-15 तो यूँ ऐसे ही हो रहे, तो अल्लाह करेगा इस तरह बढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें अपनी आखिरत के जो फवाइद हैं उस पर भी नज़र रखें। दुनिया के भी कोई नुकसान तो नहीं है इसमें, बल्कि दुनियावी तौर पर भी नेकी के जरिए मतलब सुकून मिलता है, राहत मिलती है, जिसके लिए आज मतलब दुनिया सरे गर्दा है, परेशान है, सुकून की तलाश में है।
لیکن इनको पता नहीं कि सुकून अल्लाह की याद में, और ये सारे नेक काम अल्लाह की याद ही का ज़रिया हैं. तो इन पर अगर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें दुनिया में सुकून मिलेगा. और फजूलियात से बचेंगे तो इसमें फजूल बातों का भी है, तो दुरूद शरीफ पढ़ने का मौका मिलेगा, ज़बानी है ज़िक्र बिल लिसान का मौका मिल जाएगा, ज़िक्रुल्लाह करेंगे. फ़वाइद झगड़ों से, लड़ाइयों से, बुग़्ज़ कीना से, बहुत सारे गुनाहों से भी ये नेक अमाल पर अमल हमें बचा कर निकाल जाएगा. जबकि कमा को हो, हमारा अपना ज़हन हो और अमल भी हो तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा. कि मैं नेकी कर नहीं सकता, मैं नेकी पसंद करता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुझे भी नेक बना दे. तो जो भी नेक बनने की कोशिश करता है या नेक होता है, मुझे उससे खुशी होती है, क़ल्बी मुसरत होती है. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहद जुस्तुजू इल्म ये बुलंद